Hello students, welcome to business studies class. So today I am going to start principles of management, that is continuation of principles of management. Previous class we discussed about the principles of management, that is what is principles of management, nature of principles of management, importance of principles of management, and two principles of management which is given by Fayol. So today I am going to continue the principles of management, that is Fayol contributed 14 principles of management. Under the 14 principles of management I discussed division of work and authority and responsibility. Once again I am repeating the same thing, division of work. So first principle is division of work. Division of work is nothing but the work has to be divided into small unit and given to the persons according to their capacities, according to their quality and qualification, experience. So automatically what happen, it will create a specialization and it will it will improve the efficiency of the person, and it will help the organization to achieve the organization goal easily and without any confusion. Then second I discussed that authority and responsibility. Authority and responsibility, that is here the principles insist that the authority, whenever responsibility is given to some person, at the same time the person has to be given the authority to complete the responsibility. So I said that authority and responsibility must be in balance, because when authority is given in excess, then automatically it will leads to the misuse of the misuse by the managers. If the responsibility is excess without the authority or less authority, then automatically it will lead to the non-compliance of the or non-completion of the work. So this is the authority principles of division of work and principle of authority and responsibility. Now we move on to the third principle, that is discipline. Okay, discipline. Discipline means framing of rules and regulations, following a code of conduct, meeting of commitments by subordinate as well as by superior, clear and fair agreement between superior and subordinate, judicious application of penalties. So what the principles of discipline says, that principles of discipline says that every person must follow the rules and regulations framed by the top level management. That means what? In an organization there must be a rules and regulation. So rules and regulations, that is fair rules and regulations, fair agreement. Not only the rules and regulation has to be followed by the employees, the rules and regulations also followed by the superiors as well as subordinates. That means not only the employees, employer also has to follow the rules and regulations which is framed by the top level management. The next thing is what? Whenever we are framing rules and regulation, the rules and regulation must be clear instruction. It must be a clear instruction or it has a fair agreement between superior and a subordinate. Then judicious application of penalties. That means in case if anybody is not following the rules and regulations in the organization, then automatically penalty will be there. Okay, ये क्या है हम देखते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशंस नथिंग बट आप जब स्कूल में देख रहे हैं, आप जब स्कूल जा रहे हैं तो आप लोगों को भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होंगे. फॉर एग्जांपल इट इज़ योर फर्स्ट डे क्लास, ऑटोमेटिकली आपके क्लास टीचर या कोई भी टीचर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे, द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय यू. क्या क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म के बारे में हो सकते हैं, देन क्लास में कैसा रहना चाहिए, देन अदर थिंग्स, बुक्स वगैरह, बुक्स नोट्स ये सब कैसा आपको रखना चाहिए, इस तरह बहुत कुछ जो है आपको बताएंगे. सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. टाइम से आना, टाइम से जाना, इस तरह जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, फ्रेम किए होंगे. सो देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक रूल्स हम बता देती हैं. इनके इफ़ आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक फीवर हो रहा है, तो आपको जाना है, तो पहले ही आपको बताया गया है अनलेस और अनटिल योर पेरेंट्स आर कमिंग टू पिकअप यू, आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा. दैट मीन्स आपको तभी आपको स्कूल से बाहर भेजा जाएगा. इन एनी कंडीशन आपका पेरेंट आएंगे, उनके उसके बाद ही आपको जो है स्कूल से बाहर भेजा जाएगा. दिस इज़ द रूल्स. आपको ये रूल्स को फॉलो करना होगा. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, देन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है या कुछ भी हो सकता है. सेम थिंग बहुत सारी चीज़ें, आपको कोई भी स्कूल का प्रॉपर्टीज़ को डैमेज नहीं करना है, ये आपको बोला गया. दिस
is the rules of the school. If you are damaging the property of the school, then automatically आपके ऊपर क्या होगा, penalty होगा. This should be happen in the organization also. Organization में जो rules and regulations frame किया गया है, according to the rules and regulations every employer and employees को follow करना होगा. In case वो नहीं किए तो then वहाँ पे indiscipline create होने का chances are there. So to avoid these things, principles of discipline जो है उनको follow करना होगा. ओके, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं देन व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं देन सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी. प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करने से क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशंस होगा. देन क्या हो सकता है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकता है. लाइक आप जानते ही हैं कि जैसा हम बोली थी एग्जाम्पल में, अगर आपको रूल्स दिया गया है कि आपको तबीयत ख़राब होने से भी आपका पेरेंट्स जब तक नहीं आएगा आपको स्कूल से बाहर भेजा नहीं जाएगा. सो दिस इज़ द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. दिस इज़ द डिसिप्लिनरी वन. डिसिप्लिन का एक रूल्स है, तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना होगा. इन केस ओके, सो आप ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं देन देयर शुड नॉट एनी प्रॉब्लम. सो सिस्टमेटिकली आप जा रहे हैं, ये है. सो सिस्टमेटिकली आप जा रहे हैं. देन नेक्स्ट जो है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है. आप रूल्स के हिसाब से एवरीथिंग करेंगे, एग्रीमेंट के साथ में आप काम करेंगे, देन सिस्टमेटिक वर्क होगा. Okay, this is the positive effect. What is the consequences or what is the negative effect if we are violating the principles? अगर हम लोग के principles को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन क्या हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, कन्फ्यूजन्स हो सकता है एंड चांसेस ऑफ chaos आल्सो. देन यहाँ पे वेस्टेजेस हो सकता है, लाइक वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, देन डिले इन वर्क. ओके, इनडिसिप्लिन, अगेन इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है. जैसा हम बोली थी, एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले जो एग्जाम्पल हम बोली थी कि आपको स्कूल से बाहर जाने के लिए आपका पेरेंट्स का ज़रूरत है. इन केस ऐसा एक रूल स्कूल में फ्रेम नहीं किया होगा, क्या हो सकता है, आप जानते हैं जब मर्जी है आप सब क्या कर सकते हैं, स्कूल से चले जाएंगे. कभी किसी को सर दर्द, कभी किसी को फीवर, इस तरह आप एक बोल के आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं. क्या ये डिसिप्लिन क्रिएट करेगा, क्या हो सकता है, वहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है. सो ये सब नहीं होना है. सो इन केस इफ़ यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, सो ऐसा ही होगा, डिसऑर्डर्स होगा, कन्फ्यूजन्स होगा, कैओस होगा, इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा. ओके, ऑर्गेनाइजेशन में ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा. देन और क्या हो सकता है, डिसिप्लिन के साथ में हम काम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली व्हाट, हम एक एग्रीमेंट के साथ में काम कर रहे हैं. तो एग्रीमेंट में आपको बताया है आप अगर ये रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे देन यू विल बी गिवन दिस वन, और आपको पनिशमेंट मिलेगा, इधर आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा. सो ये आपका एग्रीमेंट में होगा. सो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आप जाएंगे. तो आपको क्या हो सकता है, आप अगर अच्छी तरह से काम करेंगे डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिल सकता है. देन आप काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे आपको पनिशमेंट हो सकता है. सो नॉट ओनली पनिशमेंट, यहाँ पे क्या हो सकता है, हम डिसिप्लिन यूज़ नहीं करते हैं, देन ऑटोमेटिकली इट क्रिएट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा काम कर रहे हैं. सो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो सकता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है. देन डिले इन वर्क आल्सो. अगर आपको बोला गया है, रूल्स में आपको बोला गया है कि विद इन अ डे यू हैव टू कंप्लीट द वर्क, देन क्या करेंगे, आप वो वर्क को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे इफ़ देयर इज़ अ रूल्स और देयर इज़ अ अग्रीमेंट. अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, यू विल बी लेजी. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पे टाइम जो है आप ज़्यादा लेने लगेंगे. सो डिले इन वर्क हो सकता है. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन. एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रिंसिपल को यूज़ करें, दैट इज फयाल इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन को यूज़ कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली आपको ये देखना होगा, लाइक जब प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. सेम थिंग आपका अग्रीमेंट में क्लियर होना चाहिए, यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी रिवॉर्डेड. सो आप क्या कर सकते हैं, वो सुपीरियर हैज़ टू फॉलो द अग्रीमेंट. सो इन केस इफ एनी पर्सन इज डिसिप्लिन को जो है यूज़ कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन वो वर्क कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हम जो भी उनको देना चाहते थे, अदर रिवॉर्ड और समथिंग, सो ये भी हम लोगों को देना होगा. सो ऐसा हम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में इजीली हम क्या कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं. Okay student, next principle is unity of command. What unity of command says, order from one boss only, more than one boss confuse the subordinate, improves the effectiveness in working.
So it is a simple one. So the person who are working in the organization, the employees, every employees must receive order from only one boss. That means एक ही boss से आपको order receive करना है. If you are receiving order from more than one boss, automatically it will confuse you. So it will create confusion among the worker, among the employee, that whose order he has to fulfill first. So ये जो conditions है यहाँ पे होगा. So अगर हम principles of unity of command को हम use कर रहे हैं, then it improves the effectiveness of the employees. How? हम एक एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं. राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच ऑफ दिस वन आपका स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है. सो हियर one boss is there. Okay, see here. So one boss is there and three managers are there, three person subordinates are there. So one person will receive order from one boss. So यहाँ पे आपको पता चल रहा है one person जो है he receives order from one boss. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, दैट शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. सो आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि बॉस हम लोगों को क्या बोले हैं, वी हैव टू फॉलो द वर्क एंड वी हैव टू कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. ओके, देन सेकेंड पिक्चर में आप देखिए, हियर एक पर्सन जो है, एक बॉस वन एंड बॉस टू इज हियर. सो बॉस वन भी ऑर्डर दे रहे हैं, अनदर बॉस इज ऑल्सो ऑर्डर दे रहे हैं. दैट इज द पर्सन रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, मोर देन वन बॉस. सो मोर देन वन बॉस अगर ऑर्डर रिसीव करने से क्या होगा, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन. एक एग्जाम्पल के साथ हम बता रही हैं. सी देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं. सो सेल्स डिपार्टमेंट में आपको ये बोल रहे हैं, दैट इज यहाँ हम लोग ले लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट एंड इट इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट हम लेते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपको ये ऑर्डर दिया गया है दैट यू हैव टू स्लो द प्रोडक्शन प्रोसेस. व्हाई? व्हेन वी आर स्लोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये हो सकता है कि आप यू कैन मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी. सो आप स्लोली प्रोडक्शन करेंगे तो क्वालिटी को मेंटेन करेंगे. ये आपका बॉस आपको ऑर्डर दिया है. ओके, देन सेकेंड जो है, सेल्स डिपार्टमेंट से आपको ये ऑर्डर मिल रहा है, यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, दैट इज इंक्रीज द प्रोडक्शन. कैसा आपको इंक्रीज करना है, दैट इज बहुत जल्दी आपको डिपार्टमेंट में जितना प्रोडक्शन आपको करना है वो कंप्लीट करना है विद इन सम स्टिपुलेटेड टाइम. सो आप दोनों बॉस का ऑर्डर सुन चुके हैं. नाउ इट इज़ द कन्फ्यूजन दैट हुज जो ऑर्डर जो है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का करेंगे. सो ये कन्फ्यूजन आपके अंदर रहेगा. समटाइम्स आप किसी एक डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट कर सकते हैं, समटाइम्स आप दोनों डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन. ओके, सो ये होगा. सो इफ़ वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, देन क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव ओनली ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन पर्सन, देन ऑटोमेटिकली आप वो वर्क को कंप्लीट कर लेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे दो बॉस का अगर आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, देन आप क्या नहीं कर सकते, वर्क को आप कंप्लीट नहीं कर सकते. व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट्स? पॉजिटिव इफेक्ट्स यहाँ पे देयर शुड नॉट एनी कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, सो विदाउट कन्फ्यूजन ही कैन कंप्लीट हिज वर्क. देन सेकेंड जो है, नो ईगो क्लासेस. सो नो ईगो क्लासेस. क्या है ईगो क्लास? फर्स्ट हम देखे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट से आपको एक ऑर्डर मिल रहा है. अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑर्डर को कंप्लीट कर लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर बॉस है उनका ऑर्डर रिसीव किए और उसको कंप्लीट कर लिए, देन ऑटोमेटिकली सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर या सेल्स डिपार्टमेंट का बॉस क्या हो जाएंगे, उनका मन में ईगो रह जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कर लिए, मेरा हम जो बोले थे वो काम नहीं करें. सो ये हो सकता है अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड को आप यूज़ नहीं कर सकते. सो ये जो है यहाँ पे नहीं होगा व्हेन यू आर यूजिंग द यूनिटी ऑफ कमांड, व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सो ईगो क्लासेस वहाँ पे नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेगेटिव इफेक्ट. इफ़ यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज जो है, जैसा हम लोग यहाँ पे बोले थे, पॉजिटिव इफेक्ट में वहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, नो कन्फ्यूजन. सो ऑटोमेटिकली इफ़ वी आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी कन्फ्यूजन,
देयर इज कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स की किसका काम हम लोगों को पहले करना होगा। देन नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेट्स जो भी होगा इन लोग क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइक एक्सक्यूज गिविंग बाय गिविंग एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज आप कर सकते हैं, वाई यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको बोले हैं, देन सेल्स डिपार्टमेंट भी आपको कुछ मैसेज दिए हैं। जो एग्जांपल हम बताइए वही एग्जांपल के थ्रू हम समझाती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपको ऑर्डर मिला है, देन नेक्स्ट आपको सेल्स डिपार्टमेंट से भी ऑर्डर मिला है। जब आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे कि आप एक वर्क को कंप्लीट नहीं करें, तो आप एक्सक्यूज़ ये बोल सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट का काम करना था, इसलिए हम ये काम कंप्लीट नहीं किए। ओके, जब आप सेल्स डिपार्टमेंट वाले जो है आपको पूछने आएंगे तो वहाँ पर भी आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ये क्या होगा, आप बताएंगे कि एक्सक्यूज़ ये लेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बताया हुआ फॉलो करें, इसलिए यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ। सो आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ ले सकते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं निभाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ ले सकते हैं। देन अगेन ईगो क्लासेस, सेम एग्जांपल ईगो क्लासेस हम बताई थी कि अगर आप ये यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है, इफ़ यू आर वायलेटिंग द यूनिटी ऑफ कमांड देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द ईगो क्लैशेस ऑफ द बॉस सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स। द नेक्स्ट जो है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिटी ऑफ कमांड आप यूटिलाइज नहीं करते, यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स को आप यूज़ नहीं करेंगे, देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। Okay student, next we move on to the unity of direction. Next principle, unity of direction. Unity of direction is just one unit, one plan. Efforts of all employees must be directed towards one goal. Unification of efforts towards one direction. Base of coordination concept. One unit, one plan. So unity of direction insists that Fayol insists that we have to apply the unity of direction. Unity of direction says that one unit, one plan. So there may be one unit and the unit consists of one plan, one head होना चाहिए and according to that plan होना चाहिए, and the employees are directed towards to that plan, that is directed towards the achievement of the goal. One goal ही आपका होना चाहिए, वो one goal के थ्रू आपको डाइवर्ट करना चाहिए। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग और इफ़ यू आर अप्लाइंग द वन यूनिट वन प्लान, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग 2 लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट और 3 लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लाइक वी कैन से दैट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स, ओके, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज 2 लाइन प्रोडक्ट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, द मार्केट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड द मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो अगर हम ये प्रोडक्ट का अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर देंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। एक यूनिट जो है कॉस्मेटिक के टुवर्ड्स रहेगा एंड एक यूनिट जो है मेडिसिन के टुवर्ड्स रहेगा। सो इसमें क्या हो सकता है, हम इजीली अपना गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो इसीलिए फॉर दिस ओनली द फैल जो है फैल इंसिस्टिंग द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल हम बताती है, अगर आपका स्कूल में कोई प्रोग्राम है एंड आपको बताया गया है कि यू हैव टू अरेंज द थिंग्स, सो आपको थिंग्स अरेंज करने के लिए बोले हैं, इट मे बी कंपटीशन और समथिंग, सो आपको एक प्रोग्राम के लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए बोले हैं, तो आप एक हेड के अंडर में काम करें, एक हेड के अंडर में आप एक काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हेड आपको जो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करेंगे, काम करेंगे और ईजिली वो प्रोग्राम को सक्सीड कर सकते हैं। इन केस अगर आप ऐसा नहीं है, डिफरेंट प्लान से आपको एक प्रोग्राम जो है कंडक्ट करना है, वो प्रोग्राम में डिफरेंट थिंग्स है, सारा थिंग्स आप ही को करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। सो आपको प्रोग्राम जो भी है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी वन यूनिट, वन प्लान फॉर वन यूनिट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम देखते हैं व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट। सो पॉजिटिव इफेक्ट, if we are applying this principle, then automatically we can achieve our organizational goals easily. Organization goals को क्या कर सकते हैं हम लोग, अचीव कर सकते हैं। Then here
According to this goal, efforts of all employees जो है must be directed towards one goal. So easily हम क्या कर सकते हैं, efforts of organizational जो employees होते हैं वो employees को organization goals के towards हम लेके जा सकते हैं. So ये भी आपका positive effect होगा. Then we will see the negative effect. So what is the negative effect? Lack of coordination. Already हम बोले थे कि if we are using this principle, then we can create a coordination in the organization, because coordination कैसा होता है, बाय creating or by insisting the efforts of the employees towards the organizational goals. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, we are creating a coordination के थ्रू ही हम ये काम को complete कर सकते हैं. So अगर हम ये principles को use करेंगे then automatically वहाँ पे coordination create होगा. In case if you are not using the principles then वहाँ पे क्या हो सकता है, coordination create नहीं हो सकता है. So lack of coordination. Then next जो है wastages efforts and resources. So efforts and resources waste होगा if we are not applying the rules or not following the principle. So आप जानते ही हैं, example हम बताई थी कि आपको एक काम दिया गया है, you have to conduct the program. So आप program conduct कर रहे हैं, एक program में variety रहेगा but उसमें से एक particular portion आपको लेके करना होगा. अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, आप easily कर सकते हैं, वो task जो है easily complete कर सकते हैं. नहीं है, आप सभी task एक साथ लेके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो सकता है, वेस्टेजेस बहुत सारा हो सकता है, रिसोर्सेज बहुत सारा वेस्टेजेस हो सकता है. सो सेम थिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप जो है डिफरेंट टास्क लेके करेंगे देन ऑटोमेटिकली इट विल लीड्स टू द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्टेजेस ऑफ योर एफर्ट्स. देन जो डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, व्हेन देयर इज अ वेस्टेजेस एंड रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट डिफिकल्टी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. समझ में आया बच्चे? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज subordination of individual interest to general interest. Okay, next principle is subordination of individual interest to general interest. What is the meaning of subordination of individual interest to general interest? From the starting, that is first unit से लेके अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, that is integrating the efforts of the employees towards a common goal, यही हम पढ़े थे. So same है यहाँ पे subordination of individual interest to general interest. इसमें आपको ये insist कर रहा है, this principle insisting that organization interest is more important than personal interest of employees. While taking decisions, manager must give a priority to benefits of organization and not personal benefit. Try to achieve personal goal with the organizational goal. Manager should not take unfair decision taking, bribes or by giving benefit to their relatives. Okay. Now हम explanation देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर का अपना अलग ऑब्जेक्टिव्स है, एम्प्लॉयज़ का अपना अलग ऑब्जेक्टिव्स है. सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स अलग है बट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अलग है. सो व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दैट विल गिव बेनिफिट टू अस. अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम इतना जल्दी बेनिफिट नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे. सो हियर द मैनेजर को ये देखना होगा, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड एम्प्लॉयज़ गोल, इंडिविजुअल्स गोल both are in the same direction, then there is no problem for a manager. But the thing is what, if the goals of employees and the organizational goals is different, then automatically the manager has to reconcile the individual goal. कैसा reconcile कर सकते हैं? मैनेजर को ये बताना होगा या ये करना होगा, वो इंडिविजुअल का गोल को कॉमन गोल्स के थ्रू डाइवर्ट करना होगा. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर. अगर मैनेजर ऐसा नहीं कर पाए देन ये देखना होगा इंडिविजुअल गोल शुड बी सैक्रिफाइस. इंडिविजुअल गोल को क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो यही है. सो वेन एवर द गोल्स आर डिफरेंट, दैट इज एम्प्लॉयज गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर डिफरेंट, then the manager try to reconcile the individual goals. If it is not happen, then automatically the manager has to sacrifice the individual goals to achieve the organizational goals. So this is the principles of subordination interest into the
जनरल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है एक काम दिया गया है, दैट इज़ नेक्स्ट डे आपका क्लास में एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, दैट इज़ अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। सो फॉर ड्राइंग कॉम्पिटिशन यू हैव टू परचेज द चार्ट पेपर्स, ओके, ड्राइंग शीट्स। सो ड्राइंग शीट्स आपको परचेज करना है। सो योर टीचर आस्क्ड यू टू परचेज द ड्राइंग शीट्स, ओके। सो आप जा रहे हैं ड्राइंग शीट परचेज करने के लिए। लंप में ड्राइंग शीट आपको परचेज करना है, से 100 पीसेस ऑफ ड्राइंग शीट्स आपको परचेज करना है। सो हियर ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपका, दैट इज़ आपका गोल क्या है, आपका स्कूल का, दैट इज़ आपका और स्कूल का गोल या क्लास का गोल क्या है, यू हैव टू कंडक्ट द ड्राइंग। अच्छे तरह से आपको वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट करना है। सो फॉर कंडक्टिंग द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ड्राइंग शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप बाज़ार पे गए ड्राइंग शीट खरीदने के लिए, वहाँ पे क्या हुआ, दुकान जो शॉपकीपर है इज़ वेल नोन टू यू। सो शॉपकीपर आपको क्या कर रहा है, लो क्वालिटी का पेपर दे के आपको सम कमीशन देने का भी बात कर रहे हैं। सो आप भी वो पेपर लेकर आ गए हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपका गोल कुछ अलग है, आपका गोल कुछ अलग है। सो इंडिविजुअल गोल कुछ अलग है। देन आप नेक्स्ट डे आ रहे हैं, आकर स्कूल में वो पेपर को दे रहे हैं, तो टीचर आस्क दैट इट इज़ नॉट अ क्वालिटी वन। आप कुछ ना कुछ कर ली, कुछ ना कुछ बोल के वो बात वहीं पे रुक गया एंड कंपटीशन शुरू करें। बट क्या आप सोच रहे हैं कि ये कंपटीशन सही तरीक़ा से होगा? वो ड्राइंग शीट में आप ड्राइंग कर सकते हैं सही तरीक़ा से, इट इज़ लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग शीट। सो वो लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग शीट्स में आप ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। सो ये वेस्ट हो जाएगा। सो ये एक एग्जांपल हुआ। सो और नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, जब आपको लग रहा है कि आप जो आपका गोल जो है, वो गोल्स को आप अचीव करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली यू हैव टू सैक्रिफाइस द गोल्स। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका थिंकिंग जो है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हम अचीव करेंगे देन ऑटोमेटिकली वो वहाँ थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम भी अचीव कर सकते हैं। बट आप अगर अपना ही गोल्स को लेके चलेंगे देन ऑटोमेटिकली वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम जो है लॉन्ग रन तक हो सकते हैं। देन फैल ऑल्सो इंसिस्टिंग द मैनेजर्स दैट मैनेजर जो है, ये एग्जाम्पल से ही हम बता दें, अगेन हम बता रहे हैं, मैनेजर जो है अपना प्रायोरिटी को माइंड में नहीं रखना चाहिए, अपना अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मैनेजर को भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर है, मैनेजर जो है सप्लाई ऑर्डर्स वगैरह कलेक्ट करना है। सो वाइल कलेक्टिंग द सप्लाई ऑर्डर्स मैनेजर हैज़ टू सी एवरीथिंग लाइक क्वालिटी एंड अदर थिंग, प्राइसेस, एवरीथिंग मैनेजर हैज़ टू चेक। रादर देन ऐसा नहीं है कि मैनेजर कोई अपना रिलेटिव्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अपना रिलेटिव्स को देने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन, you have to work for the organizational goal. So this principle insists that every efforts towards the organizational goals. So individual or goal and ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है सेम होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं है तो इंडिविजुअल को अपना गोल को सैक्रिफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल को करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल के टुवर्ड्स काम करना होगा। सो व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट इफ़ we are following this principle? The positive effect is again achievement of organizational goals. हम organization goals को easily achieve कर सकते हैं। Again coordination between the employer and the employee, coordination between the employer employee or coordination between the individual goals and the organizational goals. अब if we are sacrificing the individual goals then automatically हम organizational goals के towards काम कर रहे हैं, so क्या हो सकता है, coordination create हो सकता है। Then what is the negative effects? What is the consequences? Again consequences आप क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते अगर दोनों का, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का गोल्स अलग अलग रास्ते पे रहेगा तो हम क्या नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ईजीली अचीव नहीं कर पाएंगे। देन एम्प्लॉयज़ जो है लॉन्ग रन तक सफ़र कर सकते हैं, लाइक अपना ही गोल्स को लेके चलना चाहेंगे तो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रन तक सफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन of individual interest to general interest. Next principle is remuneration of person. So remuneration of person says that pay fair and adequate wages and salary. Pay fair wages so that employees can maintain minimum standard of living. With increase in profit and prosperity of organization, increase employee salaries and wages also.
Employees are not working only for happiness in organization, they are working for remuneration. Remuneration of persons means the organization has to pay fair remuneration to the employees working in the organization, because employees are coming to the organization to earn revenue for their livelihood. So here the organization must pay the remuneration, at least they have to maintain the minimum standard of living. So this is very important. The next thing, the organization has to see some act, that is the organization before paying the salary or before fixing the salary for the employees, they have to see that the position of the organization. The fair wages is determined according to the financial capacity of the organization. Then second one is the minimum wages act, that means the organization has to follow the minimum wages act provided by the government, and then the wages salary is paid by the competitors. We have to see the competitors company or competitor organization also to determine the wages for the employees. The next हम लोग ये देख सकते हैं, for example अगर in case not only this आप जो है increase कैसे कर सकते हैं, in case if you are earning more revenue in any year or consecutive years, then automatically you can increase the remuneration of the employees, or you can give some amount as a bonus to the employees. So automatically what happen, when their income increases, then they are satisfied, the employees will get satisfied and the employees will get motivated, and automatically motivated employees will contribute more to the for the organization to earn more revenue. Okay, so this is the remuneration. We see the positive effect of this principle. when adequate salary आप देंगे या minimum salary आप देंगे, sometimes अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, सो आप ये रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल के हिसाब से आप एक्स्ट्रा जब भी प्रॉफिट आपको मिलेगा आप बोनस के रूप में देंगे, देन ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, द एम्प्लॉइज विल बी मोटिवेटेड. सो एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड, देन वंस एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे दे डिवोशनली वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में डिवोशनली वर्क करेंगे. In case if we are not violating this principle, what are the consequences? अगर हम लोग प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो क्या होगा? रेम्यूनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगर आप रेम्यूनरेशन प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं, देयर इज़ अ इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज. आप एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं? दे कैन मूव टू द नेक्स्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉइज टर्नओवर. द नेक्स्ट जो है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज जो है डिससेटिस्फाइड होते हैं, डिसमोटिवेट होते हैं अगर आप ये प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट हियर. सो गो थ्रू द बुक एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बाकी जो भी प्रिंसिपल्स बचे हैं वो प्रिंसिपल को देखते हैं. थैंक यू.